Hello students, welcome to the mathematics class. So in our previous class we have learned about the distributive properties and we did some questions of the distributive property, and we had started our first exercise of chapter 1 and we completed the third question, and I have given you a homework of this question. Most of the students had given their homework, but most of them solved it properly, but some of them are not solving properly. So I am going to show you how the homework was to solve. Okay, so this was your question. सबसे पहले आपको क्या करना था, मैंने जैसे आपको बताया था कि इस नंबर्स में, इन टर्म्स में आपको देखना था कि कोई सी नंबर जो कॉमन दिखे. तो यहाँ पे 6/7 और ये 6/7 यानी टर्म में इन दोनों टर्म में 6/7 कॉमन दिख रहा है. तो सबसे पहले हम इसको पास पास लिखेंगे. ओके, एंड देन -7/3 1/49. Then by using distributive property we take common 6/7 from here, and then we get 49, and we have LCM same. Okay, 18 is denominator is same here and also same here, so we will write it as like this, and then -7/3/49. Okay, then this will be 50/18. Okay, -7/3 1/49. So I will simplify it further 7 times. Okay, which will equals to 50/7 times 3 21. This will also 7 times 3 21. Denominator is same, so 50 minus 1 upon 21, which gives me 49/21. Now we are learning about the rational number. Okay, and I had already told you in our previous periods, in previous lectures, that the rational number should be number which comes in the p by q form, and p by q is such that p by q is the simplest form. It cannot be divisible by any number. Okay, but here if we look this number, this is not in the simplest form. Okay, this can be divided by 3 and 7, and this can also be divided by 7. So I will divide both numbers by 7 times 3 and 7 times 7. Okay, so I will get 7/3, and 7/3 is the final answer of this question. So check your answer. I had already checked all of the answers which I get, okay. So some of the students have this answer, and the other student did not get up to this answer. Okay, and one more thing, some of you have solved this directly. They didn't use the properties. We have to simplify using properties. Okay, here I should write distributive property. Okay, because I am using here distributive property. So I think you don't have a doubt, you will not having a doubt in this question any further. So we will move towards our next homework, which was question number 5, in which you have to write the positive number. Which positive number is its own reciprocal? So the answer will be 1. 1 is the reciprocal of its own. Okay, and 1 is also a positive number. Similarly, sixth question was, which negative number is its own reciprocal? So the answer will come to -1. Okay, so this was our all about yesterday homework. Okay, now
we will move to next question of the exercise 1.1, which is question number 7th. So the question number 7 states that find the number whose reciprocal is minus 13 by 19. We have to find the number whose reciprocal is minus 13 by 13. ओके, सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, सो आई एम गेटिंग हियर 13 by 19. अब हमको एक नंबर ऐसा फाइंड करना है कि उसका रेसिप्रोकल ये नंबर हो. सो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ अ रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल इज जस्ट द multiplicative inverse. Okay, and multiplicative inverse is whatever a number is, if you multiply it with its multiplicative inverse or its reciprocal, I get the result as 1. So I have to multiply a number or the reciprocal a number here, which on multiplication gives me the result 1. So what should the number is? The number should be 19 by 13, so that it gets cancelled here and gives me 1. Therefore the number whose reciprocal is ओके, हमको अब हम यहाँ पे 13 by 19 नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में माइनस ऑफ माइनस 13 by 19 लिखा था. आप लिख सकते हैं 13 by 19 भी लिख सकते हैं, और इसको ब्रैकेट में करके माइनस ऑफ माइनस 13 by 19 ऐसा भी कर सकते हैं. ओके, बट बी केयरफुल टू यूज द ब्रैकेट्स. इज द रेसिप्रोकल ऑफ 13 by 13 is 19 by 13, which is the answer of this question. Okay, so now we will move towards our next question, which is question number 8. First I will read it out. Name the property under multiplication. Okay, name the property under multiplication. Okay, ध्यान रखना इस बात का, क्या लिखा है. Used in each of the following. हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है. We have learned about 4 properties in our previous lectures of this session. We already know about the closure property. Then we have learned about the commutative property. Then we have learned about the associative property. And then at last we have learnt about the distributive property. Okay, with the addition of these properties we have also learnt about the additive inverse, multiplicative inverse, then we also learnt about the additive identity, and the multiplicative identity. Okay, this have we learnt so far till now. I don't think I have to revise it. If you find it difficulty to remember this, go to your previous pages and find it what was these properties. Okay, so we have to name the properties which is using here. Okay, name the property under multiplication. Okay, they specified that we have to use the properties only under the multiplication, not under the addition, not under subtraction, and not under the division. We have to use under only multiplication. Okay, so first of is 13 multiplied by 7 equals to 91, an integer. So सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है. इन्होंने 3 नंबर लिख दिए, क्या
13 लिख दिया, एक 7 लिख दिया और एक 91 लिख दिया, फिर आखिर में बोल दिया एन इंटीजर। एन इंटीजर क्या मतलब कि 13 और 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे को 91 मिला, तो 91 जो मिला है वो एक इंटीजर आया है। ओके, अगर हम इसको देखें 13 इज़ एन इंटीजर, 7 इज़ एन इंटीजर and 91 also as an integer as stated in our question. So we have learned a property about this, that if a number add, subtract or multiply, we get the same number. Okay, so this property should be the closure property. Okay, because if any two number under the multiplication multiply, we get always that kind of number. If I multiply a natural number with natural number, I always get a natural number. Okay. You have learnt about this. Okay, I already show you that this holds true. Okay, so this will be the closure property. Then we have second part here, which states that 1 multiply with minus 7 by 5 is equal to minus 7 by 5 multiply by 1 is equal to minus 7 by 5. ओके, मतलब सिंपली क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे हाथ रख देता हूँ, अगर इसको इन दोनों को जो फाइनल रिजल्ट है उसको मैं देखूँ, 1 का 7 by 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और मेरे को 7 by 5 ही मिल रहा है। ठीक है, हमने इसके एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई सी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वो ही नंबर मिलता है ना। We have learnt about this property in our previous periods of this, and we have also learnt about different properties. So which property should I use here? I will give you an example. Suppose I have a number A. I don't mention which, any number it can be, कुछ भी नंबर हो सकता है। So ए में मैं अगर 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को हमेशा ए मिलता है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, 1 है, मतलब आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई से भी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमको वही नंबर मिलता था, तो हम बोलते हैं कि वो आइडेंटिकल है, एक जैसा है ना। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसा है, तो आइडेंटिटी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ multiplicative identity. Okay, multiplicative so I don't think that you have any doubt here, because okay, if you have any doubt you can text me in my WhatsApp number. So this is of 2 parts, but in question number 8 we have also 2 more parts. I will leave it as your homework. आपको इसमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग रही है और उनका नेम लिखना है। ओके, आई थिंक यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन is also the same. You have to name the property, but in this case you have to name under the addition. Okay, read carefully question. आप सब क्या करते हो, क्वेश्चन को रीड नहीं करते हो, फटाफट आंसर लिखते हो। तो सबसे पहले सही से रीड करिए कि क्या है। ओके, तो इसमें भी 4th पार्ट है, -3/5 + 5/2 = 5/2 - 3/5। ठीक है, ये एक पहला है, फिर दूसरा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो आई थिंक यू कैन डू इट। ओके, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टीज़ को ही लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, नेम लिखना है। ओके, so now we will move towards our next question, which is question number 10. So in this question we have to use the distributive property to calculate this number. We have already learnt about the distributive property. What is it? Distributive property पहले हम लिख लेते हैं कि क्या है। distributive property है a multiplied by b plus c
इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ओके, यही है। अब यहाँ पे अभी हमने जो पिछले एक क्वेश्चन था जिसमें हमको सिंप्लीफाई करना था यूजिंग प्रॉपर्टीज़, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर जैसा ही उसकी सही है। तब यहाँ पे क्या है, a की जगह 2/3 है, b की जगह 4/9 है एंड c की जगह 2/9 है। सो वी विल use this number and put it in this RHS. So 2/3 multiplied by 4/9 plus 2/9 will give us 2/3 multiplied by 4/9 plus 2/3 multiplied by 2/9 equals to 8 times 27, okay, plus 4 times 27, same numerator, so this 8 plus 4 27 and gives me 12/27। अब ये देखना है कि ये सिंपल फॉर्म है क्या रैशनल नंबर का, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं हम उनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, ये क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल है, तो हाँ ये एक नंबर से डिविजिबल है, वो है 3। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये होगा 9 टाइम्स। सो आई एम गेटिंग आंसर हियर 4/9। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत क्या थी, हम तो इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे। ये 4/9 और प्लस 2/9 को हमने यहीं पे ऐड कर लेंगे तो 4 + 2 6 मिल जाएगा, 6/9 यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/9, 6/9 को अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा 2 और 3, तो यहाँ पे 4/9 मिल गया मेरे को सर, इज़न्ट इट, है ना। हाँ सॉरी, ये 2/3 वैसे ही रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा। सो ये होंगे, ओके, 2 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 2 से हो सकता है, तो 3 गेट्स कैंसिल है 2, ओके, एंड दिस 9 इज एज इट इज़, तो 2 2 4 4/9। ओके, हाँ मैं भी बोल रहा हूँ कि ये बहुत ईजी था, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना है। अभी तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली हम देख सकते थे कि यहाँ पे न्यूमरेटर सेम थे, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ऐड करके सॉल्व इजीली हो रहा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बाद में हमको मिलते हैं, अभी जब आप हायर स्टडीज़ पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में आ जाएंगे, कुछ इसी चैप्टर में हम अगर आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको दिखेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कम्स वेरी हैंडी। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 11. So we will first read it out. We have to add 2/3 and the reciprocal of 4/5. Okay, so I have already told you that the reciprocal means simply the multiplicative inverse, okay, or simple I have to inverse it. So the reciprocal of 4/5 is 5/4. सो therefore अब हमको क्या करना है, ऐड करना है 2/3 को 5/4 में, 8 + 5 3 15 23। ओके, so this is our answer of this question. Okay, now we move towards our next question and final question of today's period और today's lecture. ओके, इसके बाद मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, आज से हम इतना ही करेंगे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सर ने तो बोल दिया कि इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उसके बाद आप 15 क्वेश्चन नंबर पहुँच गए, वो भी 11 से। तो यस, इसके बीच के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है होमवर्क। सो द फर्स्ट इज़ you have to multiply 11/13 with the multiplicative inverse of 22/39. Okay, I have already told you about the reciprocal and the multiplicative inverse, they are same. You have to just reciprocal of this number and multiply it with
this number, and the answer you get, you have to send it to me. Okay. So the next question is, which number should be multiplied with -7/11 to get the product of 1. अब इसका मतलब क्या है, उन्होंने सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का बोला है -7/11 का. अब आगे वो भी क्या करा है, उन्होंने सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया है. क्या लिखा है, विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ -7/11 टू गेट द प्रोडक्ट 1. ओके, जैसा मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर किसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि जो रिज़ल्ट है वो हमको, और जो प्रोडक्ट है वो हमको 1 मिले. सो उसी को उन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है. ओके, सो द नेक्स्ट एंड देन द लास्ट 14th क्वेश्चन इज, विच नंबर शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट द सम 0. ओके, ये भी आपको याद होगा कि ये क्या है, तो ये एडिटिव इन्वर्स के बारे में बोल रहा है. सम 0 चाहिए, एक नंबर है उसमें कुछ भी कोई एक नंबर ऐसा ऐड करे कि उसका सम 0 मिले, तो वो जो नंबर होता है उसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, है ना. तो ये जो सब हम ना पहले कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, 2 लाइन का आंसर है. ओके, तो आई थिंक यू कैन डू इट. आप बहुत स्मार्ट हो वैसे भी, है ना. सो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर 15th क्वेश्चन which is last question of today's lecture. So for the following values of a, b, c, verify that a cross b multiplied by c equals to a multiplied b into c. Okay, सबसे पहले क्या है, हमको लिख लेता हूँ क्या वेरीफाई करना है. ओके, तो अगर हम ये देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और हमने देखा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके, दिस इज अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉट अंडर एडिशन, नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड नाइदर अंडर डिवीज़न. ओके, हमको मालूम है कि कोई सा भी नंबर होगा, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. ओके, ये तो हमको मालूम है कि ये वेरीफाई होना है, हमको वेरीफाई करना है कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा. लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो यूज़ में आती है, तो अगर हमको मालूम है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है ना, और हमको ये भी मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर होता है, कोई सा भी नंबर के बारे में बात करें, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स. ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर, एनी टाइप ऑफ नंबर. तो ये तो हमको मालूम है कि कोई सी भी वैल्यू रखेंगे हम, वो हमेशा ये इक्वली आएगा. लेकिन हमको ये वेरीफाई करना है, इसलिए हमको इसको बाकायदा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन हियर, सॉरी 1/3 इंटू -3/4 इंटू -8/9 इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई -3/4 -8/9. ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है ये इक्वल है. तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि हम पहले LHS लेके चलेंगे. LHS में मेरे पास में है 1/3 -3/4 इंटू -8/9. सो दिस विल इक्वल्स टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, -1/4. ओके, एंड दिस -8/9. दिस माइनस गेट कैंसिल, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं प्लस को लिखते नहीं हम, इसलिए राइट में कैंसिल करता हूँ. दिस 4 कैंसिल दिस 8/2 टाइम्स, सो वी हैव 2/9 as LHS. Then we go to our RHS. Okay, this which is 1/3 multiply with -3/4 and -8/9. ओके, अभी ब्रैकेट का मतलब आपको पता होगा कि सबसे पहले हम जो बॉडमास रूल लगाते हैं, बॉडमास रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सोल्व करना होता है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे. हमेशा हम मैथमेटिक्स जो भी करते हैं, जब भी मैथमेटिक्स हम कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई सा भी सम सॉल्व करते हैं, हम हमेशा बॉडमास रूल फॉलो करते हैं. आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस बॉडमास रूल. ओके, bracket operation, division, multiplication, addition, subtraction. Okay, this is the full form of BODMAS. So
this 3 get cancel 9, this minus get cancelled by minus, this 4 cancel 8 2 times, so I am getting here 2 by 3. Okay, so 2 by 3 multiplied by 1 by 3 gives me 2 by 9. Okay, which is equal to our LHS. So therefore LHS equals to RHS. ओके, मतलब LHS RHS इक्वल हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो जब भी ये वेरीफाई के क्वेश्चन आते हैं या फिर कुछ प्रूव करने के क्वेश्चन आते हैं, हम उसको आखिर में लिखते हैं हैंस वेरीफाइड, क्योंकि हमको क्या बोला है, हमको वेरीफाई करना है, इसलिए हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड आखिर में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, तो क्लास एंड करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। ओके, सो एज फार एज फॉर टुडे I am getting some of yours homework. ओके, तो मैंने एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी तक बहुत सारे बच्चों के होमवर्क मिल रहे हैं, कुछ के सही मिल रहे हैं, कुछ के गलत मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। ओके, सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि होमवर्क भेज रहे हैं, इसका मतलब आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए। ओके, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात से पहले करिए। ओके, क्योंकि रात को मैं सो जाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक अनाउंसमेंट ये करना चाह रहा था कि जिस बच्चे के भी जिस स्टूडेंट के मुझे सबसे ज़्यादा होमवर्क मिलेंगे टिल आवर अपने स्कूल खुलने तक के। ओके, हम जैसे हमारा स्कूल खुल जाते हैं फिर तो हम हमारे जो रेगुलर क्लास होगी वो अलग बात है। तब तक जिस बच्चे के मुझे सबसे ज़्यादा होमवर्क मिलेंगे मैं उसे पर्सनली ट्रीट दूंगा। ओके, ट्रीट में कुछ भी वो जो चाहे वो मेरे से मांग सकता है या मांग सकती है, कुछ भी उसे जो चाहिए। ओके, सो ये था आपके लिए कि अगर आपको ट्रीट चाहिए तो आप मुझे होमवर्क सेंड करिए। होमवर्क सेंड करना, जिसके सबसे ज़्यादा होमवर्क्स मिलेंगे मुझे उसको मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी। जैसे मैं अभी यही मेरी अनाउंसमेंट थी। ओके, तो उससे पहले अभी आपको ये बताना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा अभी तक मुझे होमवर्क किसके मिल चुके हैं। तो अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा 8th A के एक स्टूडेंट है विशाल गहलोत एंड भूमिका मुजावदिया। ये 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे रेगुलरली होमवर्क सेंड करते रहे हैं, भले सही हो या गलत हो, लेकिन इन्होंने हमेशा कॉन्स्टेंटली होमवर्क सेंड किया है। दे आर वेरी रेगुलर, दे आर वेरी सिंसियर, सो they are on top of the list of getting treat from me. Okay, if you guys want a treat from me, you better should start sending your homeworks to me. Okay, so this is all about today's class. We will see you in our next class. Okay, till then, be safe. Goodbye.